Okay, ji. So today's topic is matter waves. Acha, if we look upon matter waves, so what thing can come in our mind? Matter waves. जिस तरह कल आपने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करें तो डिफ्रैक्ट वगैरह करती है. Okay, matter waves are the waves associated with moving matter. The first thing, these are the waves. These are the waves associated with moving matter. So wave nature associated with moving matter. हाँ नहीं ocean waves नहीं. These are the waves which, like, if electron is moving or a solid particle is moving, then it is having wave behavior. ठीक है, तो that the wave associated with electron or moving particle is called matter wave. Okay, so this is actually we can say that this is opposite to photoelectric effect. Okay, how this is opposite to photoelectric effect? Because in photoelectric effect we have seen that electromagnetic radiations have particle nature. Like this light is having particle nature. Why? Because energy is in the form of small packets of energy. So this is opposite to that. If a solid particle is moving like electron, an atom, a tennis ball, a bullet, anything is moving, anything that is moving, that will be having wave nature. It means a wavelength will be associated to it. Let's say if an electron is moving, it should be having a wavelength associated with it. So we'll consider that electron is moving, it is like a wave. But when electron is moving at very high speed, a speed closer to speed of light, only then we can say that wave is associated with matter. Okay, so this is opposite to photoelectric effect, and actually this comes from de Broglie idea about moving matter. हाँ, तो everything, but speed should be very high. De Broglie proved that speed should be very high if you want to see prominent effect of waves in moving matter. Then its speed should be very high. And how de Broglie suggested that? De Broglie was again physicist. De Broglie said that look, we have already done this thing, that E is equal to mc square. Okay, and the next thing is E is equal to hc over lambda. Okay, so de Broglie suggested that okay, these two energies are equivalent to each other. Why? Because this is E and this is E. So when both are energy, so we can say okay, let's compare this mc square equal hc over lambda, right? Okay, so when you compare this C and C will cancel away. So you're left with mc is equal to h over lambda. And then this mc is actually mass into speed. This is momentum. So this is momentum, which is equal to h over lambda. Up from here, we can say that this lambda is equal to h over p, or this lambda is equal to h over m into c. So this is called de Broglie wavelength. De Broglie wavelength. Lambda over mc or lambda over momentum. So it means from here we can say that h is constant and m is also constant, because these two, h is universal constant, m is mass of that particle which remains same. So if these two things are constant, h and m, it means that we can conclude that this de Broglie wavelength is inversely proportional to c, where c is speed of particle. जब हम किसी मैटर को लाइट की स्पीड मूव करते तो वो एनर्जी नहीं कन्वर्ट होना शुरू हो जाता.
एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता, वो उसकी मास इंक्रीज होती है. when you increase the speed of object, actually its mass is going to increase, E is equal to mc square. इसी वजह से मैटर को स्पीड ऑफ लाइट पे मूव कराना बहुत मुश्किल होता है. आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है. लेकिन ये अब उतनी सुपर हाई स्पीड तो नहीं है ना. दिस इज़ नॉट क्लोजर टू द स्पीड ऑफ द लाइट. ठीक है, नहीं ऑर्डिनरी स्पीड, ऑर्डिनरी से थोड़ा सा बियॉन्ड दैट. देखो स्पीड के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होते हैं ना. एक स्पीड हमारी होती है जो हम देख रहे होते हैं 200 किलोमीटर, 100, 150. एक होती है जो पार्टिकल्स की होती है, एक होती है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, राइट. तो पार्टिकल की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजर नहीं होती. वी हैव टू पुश दैम टू बिकम टू गेट क्लोजर टू दैट. लेकिन उससे देर इज़ नो सिग्निफिकेंट चेंज इन मास नहीं होता. एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो देर वुड एट स्पीड ऑफ लाइट, तो देर वुड बी नो सिग्निफिकेंट चेंज इन मास. होगा सही, स्लाइड चेंज इन मास बिल्कुल होगा, बट इट वुड नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट. ओके, सो द थिंग इज, दिस इज, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट anything, a car, athlete, bullet, tennis ball. When it is moving, its mass is constant, right? We are not taking relativistic effects. Einstein की theory of relativity हम बीच में नहीं लेके आ रहे, ठीक है? Okay, but when you go beyond that, maybe in your research in university, then you'll be looking, okay, speed is increasing, so mass is also increasing, so I have to account that as well, right? यहाँ पे only basic things are there. Okay, so we say that when you increase the speed, then the wavelength is going to decrease. So if wavelength is going to decrease, it means if let's say this is an electron and it is moving at very slow speed. So at very slow speed, it will be like this. This is the direction of the motion. So maybe it looks कि ये तो straight line पे move कर रहा है. So this is at slow speed. But if you increase the speed, faster speed, then what's going to happen is कि its wave effect will be prominent. It will not be moving like up and down, but this is just to show कि it is having wave nature. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई इस तरह नहीं जा रहा होगा, ये सिर्फ शो करने के लिए, हमने पेपर पे शो करना होता है कि ये वेव है, तो वेव के लिए फिर हम इस तरह बना देते हैं. वाई? बिकॉज मोस्टली वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं तो वो ट्रांसफर हैं, तो ट्रांसफर अप एंड डाउन मूव करती है, राइट. ओके, सो स्लो स्पीड, longer wavelength is difficult to observe. Wavelength is there, you can see minor up and down and up over there, but that is very minor, so it is hard to judge कि ये wave है या नहीं. But over here it is easy to judge कि भाई this is the wave, right? So that's why if you increase the speed, wavelength is going to decrease, and then more wave effects will be there, right? Okay, so what was the experimental proof for this? Experimental evidence for, of course, matter waves. अच्छा बेटा, experimental evidence was diffraction experiment, electron diffraction experiment, electron diffraction experiment. This was done by de Broglie. As photoelectric effect was conducted by Einstein, तो उसने प्रूव किया कि भाई लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर है, ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सेम गोज़ फॉर डी ब्रॉगले ने कहा भाई मैं भी प्रूव कर देता हूँ. तो लास्ट टाइम वी हैव डन कि अगर आपने पार्टिकल नेचर शो करनी हो, पार्टिकल नेचर, तो उसके लिए हम कौन सा एविडेंस क्या है उसका, पार्टिकुलेट नेचर का क्या करना पड़ता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करना पड़ता है ना एक्सपेरिमेंट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइक इफ़ यू वांट टू प्रूव कि भाई ये रेडिएशन जो है इनकी पार्टिकल नेचर है, तो यू हैव टू परफॉर्म फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट इंस्टेंटली, तो वी से कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव पार्टिकल नेचर. ऑन द अदर हैंड, अगर हमें वेव नेचर ऑफ पार्टिकल शो करना है, वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, तो फिर हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? हमें डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस करनी पड़ेगी. कल ही तो आपको बताया है कि वेव नेचर के लिए इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन होती है. कि इफ़ वेव्स, आप कोई वेव किसी ग्रेटिंग एलिमेंट पे डालते हैं, एएस में जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पड़ा था, लाइट की ग्रेटिंग जिसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही थी, यंग डबल स्लिट जिसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही थी,
तो वो क्या था, वो टू थे, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है, टू डिफरेंट वेव्स आर गोइंग एंड दे आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। इफ crest of one falls with on crest of other, bright fringes form. If crest of one falls on trough of other, dark fringes formed. यही था ना, ऐसे ही था। तो अगर फ्रिंजेस बनती हैं ब्राइट एंड डार्क, तो वी से कि इसमें ये चीज़ वेव है। तो वेव टेस्ट जो है वो क्या है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ओके, सो वी से इंटरफेरेंस प्लस डायफ्रैक्शन। और ये हमें कैसे पता लगता है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन? देखो ये बहुत इजी चीज़ है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं तो इसका एविडेंस क्या होता है, एमीटर करंट शो करता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ऐसे ही है ना। तो हम कहते हैं देखो भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जब एमीटर करंट शो करता है। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन हमें कैसे पता लगेगा हो रही है या नहीं? व्हेन फ्रिंजेस विल फॉर्म, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अगर बनेंगी तो व्हील से इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है, डायफ्रैक्शन हो रही है। सो इसने चूँकि कहा था कि दीज मैटर फास्ट मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर, तो उन्होंने कहा अच्छा प्रूव करो, अगर वेव नेचर है तो फिर तो डायफ्रैक्शन होनी चाहिए, फ्रिंजेस बननी चाहिए। तो जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, ठीक है। तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए और एक स्क्रीन ली, इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते तो उसको विजिबल बनाने के लिए एक स्क्रीन ली, स्क्रीन के ऊपर फ्लोरेसेंट पाउडर की कोटिंग की। तो जब इलेक्ट्रॉन जाके उसको हिट करेंगे तो वहाँ पे एक रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन हिट करेगा वहाँ वहाँ लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसने डी ब्रॉगली ने कहा कि देखो अगर तो इसकी वेव नेचर ना हुई तो मैं इलेक्ट्रॉन डालता हूँ, रास्ते में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी रखनी है, जाहिर है ग्रेटिंग के बगैर तो नहीं काम चल सकता, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखनी है। वो उसने कार्बन फिल्म ली, कार्बन, सिंपल कार्बन का जिस तरह पेपर होता है ना, एल्यूमिनियम का पेपर, एल्यूमिनियम फॉयल, इसी तरह कार्बन का एक फॉयल या पेपर लिया। उस कार्बन के पेपर को उसने एज ए डायफ्रैक्शन एलिमेंट यूज़ किया, क्योंकि कार्बन के एटम्स के बीच में जो स्पेस होएगी वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए डायफ्रैक्शन स्पेस का काम करेगी, ठीक है। इफ़ यू रिकॉल AS, तो AS में क्या हुआ था कि यहाँ पे लाइट है और उसके बाद यहाँ पे आगे वी प्लेस्ड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट, जिसके अंदर बहुत सारी स्लिट्स थी, ऐसे ही था ना, लार्ज स्लिट्स वाज देयर। अच्छा, तो इसमें अगर हमने एक स्लिट विड्थ निकालनी है तो 1/n करते थे, n वाज नंबर ऑफ स्लिट्स पर यूनिट लेंथ, तो d इज इक्वल टू 1/n था। फिर यहाँ पे हम स्क्रीन बनाते थे, स्क्रीन, तो द स्क्रीन इज़ देयर। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर इसका इमेज कैसे बनता था? इमेज ऐसे बनता था कि सेंट्रल जो फ्रिंज है वो ब्राइट थी और उसके बाद एक डार्क पैच था, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट। फिर इसी तरह यहाँ पे ब्राइट है, ये ब्राइट है, और उसके बाद डार्क जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता जाता था एज यू मूव अवे फ्रॉम सेंटर। तो डार्क की विड्थ इंक्रीज होती जाती है और ब्राइट की डिक्रीज होती जाती है। देन थर्ड ब्राइट ऊपर बना यहाँ पे, इधर भी थर्ड ब्राइट बना, और उसके बाद फिर आगे डार्क बन गया, ऐसे ही है ना। सो दिस वाज द पैटर्न फ्रॉम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसे ही है। यही उसने काम कहा कि ओके आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, बट दिस टाइम यहाँ पे लाइट यूज़ हुई थी, तो उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ लाइट बिकॉज लाइट इटसेल्फ इज़ वेव, सो आई एम गोइंग टू यूज़ पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जगह उसने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए, ओके। फिर ये क्या था, ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होती है? एक प्लास्टिक की चिप होती है, ओपैक चिप, जिसके ऊपर स्लिट्स होती हैं, गैप्स होते हैं, जिसके अंदर से लाइट डायफ्रैक्ट होती है। और गुड डायफ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि जो इसकी गैप होता है वो वेवलेंथ के इक्वल होता है, गैप इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वेवलेंथ। दिस वाज फॉर गुड डायफ्रैक्शन। गुड डायफ्रैक्शन की कंडीशन होती है ना कि गैप विड्थ और वेवलेंथ बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तब बेस्ट डायफ्रैक्शन होती है, ऐसे ही है। अच्छा, आगे फिर स्क्रीन यूज़ की। स्क्रीन जो है, स्क्रीन क्या आती, सिर्फ वाइट स्क्रीन यूज़ कर ली उसने, और कुछ भी नहीं, वाइट पेपर या वॉल वो यूज़ कर लिया। ये था लाइट के साथ। अब उसने डी ब्रॉगली ने इसी को मॉडिफाई किया और चेंज की सब चीज़ें, पैटर्न यही रखा, चीज़ें चेंज कर दी। लाइट की जगह उसने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन। ग्रेटिंग एलिमेंट की जगह उसने क्या यूज़ किया, कार्बन फिल्म। कार्बन फिल्म, और कार्बन के जो एटम्स हैं, एटम्स के बीच में जो गैप है, वो गैप जो है वो स्लिट का काम करेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन पे यहाँ उसने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी, फ्लोरेसेंट
स्क्रीन। क्यों? क्योंकि भाई लाइट तो नॉर्मल स्क्रीन पे जाके पैटर्न बना सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएगा? इलेक्ट्रॉन तो नज़र ही नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को विजिबल करने के लिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन उसने लगा दी। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है? एक सिंपल प्लास्टिक कोटेड विद फ्लोरेसेंट पाउडर, ठीक है, दैट ग्लोज व्हेन एनी मूविंग पार्टिकल हिट्स इट, तो उस जगह पे वो ग्लो करता है। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? उसने कहा अच्छा अगर तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर ना हुई, तो जब मैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को डालूंगा उसके ऊपर, कार्बन फिल्म के ऊपर, तो ऑल द स्क्रीन विल बी एलिमिनेटिंग, ठीक है, या उसके जो पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट बनेंगे। मतलब कोई फ्रिंज, रेगुलर फ्रिंज नहीं बनेगी। कैसे? जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जहाँ हिट करेगा वहाँ लाइट हो जाएगी, और वो स्क्रीन जो है वो लेट्स से ऑलमोस्ट इवनली ब्राइट हो जाएगी, कि ऑलमोस्ट हर जगह इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे। सिर्फ जो एटम की जगह होगी वहाँ सर्कुलर, वहाँ नहीं पहुंच रहे होंगे, तो बीच में सर्कुलर डॉट्स होंगे, बाकी हर जगह स्क्रीन जो है वो एलिमिनेट होगी। जैसे शैडो बनता है, किसी चीज़ का शैडो हम बनाएं तो, राइट। लेकिन अगर वेव हुआ तो फिर उसने कहा फिर फ्रिंजेस बनेगी, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनेगी। तो हुआ क्या? जब उसने वो इलेक्ट्रॉन डाला तो वो फ्रिंजेस बन गई। जब फ्रिंजेस बन गई तो इसका मतलब है कि फ्रिंज पैटर्न बन गया। इसका मतलब है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है दे आर बिहेविंग लाइक वेव, क्योंकि तभी तो वो डायफ्रैक्ट हो रहे हैं, तभी तो वो फ्रिंजेस बन रही हैं। जो वो पहले सोच रहा था वो नहीं हुआ, राइट। ओके, आपने कुछ पूछना है? कार्बन फिल्म उसने कैसे चूज की? उसको कैसे पता लगा कि बीच में जो डिफरेंस है वो उसके लैम्डा के बराबर है, जबकि वेव तभी प्रूव ही नहीं हुई थी? बेटा वो तो अब ये उससे जाके पूछना पड़ेगा कि तुमने ऐसे क्यों किया था। लेकिन बात यह है कि देखो, एक चीज़ जो रिसर्चर होते हैं उनको एक चीज़ पहले से आइडिया होता है कि अगर मैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करूं तो इसका गैप तो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ख़ुद बनाऊं एक प्लास्टिक ले के ऊपर मैं कट लगाऊं तो कट तो बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा था। और ये कोई बहुत सदियों पुरानी बात भी नहीं है, ये रीसेंट बात है, कोई बहुत पुरानी बात ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये तकरीबन यू कैन से के 100+ ईयर्स हैं, मतलब मे बी 110-115 ईयर्स पहले की बात है। तो बहुत पुरानी बात ये नहीं है, उस टाइम चीज़ें डेवलप हो चुकी थी, ये नहीं कि आज ही चीज़ें, उस टाइम भी थी चीज़ें, राइट। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में बेटा सबसे पहले उसने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ किया। इलेक्ट्रॉन गन, अब देखो इलेक्ट्रॉन गन कैसे होती है कि एक जो है वो बैटरी यहाँ पे ली, लो वोल्टेज बैटरी, और इसके साथ एक फिलामेंट लिया, 1 फिलामेंट, ठीक है। और फिलामेंट के सामने उसने क्या किया? एक मेटल, रिएक्टिव मेटल रख दी, वेरी रिएक्टिव मेटल। इट मींस जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जिस तरह लेट्स से जिंक है, कॉपर भी हो सकती है लेकिन लेट्स से जिंक है। अच्छा, अब उसके बाद उसने ये किया कि इससे आगे उसने एक सिलेंडर लिया मेटल का, मेटल सिलेंडर। अच्छा, अब इसने मेटल सिलेंडर क्यों लिया और उसका क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, उसने एक और काम ये किया कि यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी ले ली, किलो वोल्ट हाई वोल्टेज बैटरी। इसका पॉजिटिव इधर कनेक्ट कर दिया और इसका नेगेटिव इसने मेटल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब यहाँ, और ये वेरिएबल बैटरी थी लेकिन ये लो वोल्टेज है, लो वोल्ट बैटरी, ये जो है ये हाई वोल्ट, किलो से शो हो रहा है कि हाई है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब यहाँ से करंट आया, ये फिलामेंट हीट अप होना शुरू हो गया, उसने मेटल को हीट अप किया। जब उसने मेटल को हीट अप किया तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना शुरू हो गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की इमिशन शुरू हो गई। ये जो इलेक्ट्रॉन की इमिशन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, देखो वर्ड से ही देख लो, थर्मियोनिक, थर्म निकला है थर्मल से, आयनिक मीन्स आइन, इमिशन, ठीक है। इमिशन का मतलब एस्केपिंग प्रोसेस। इट मीन्स के थर्मियोनिक इमिशन का मतलब है व्हेन एवर यू हीट सम मेटल देन electrons will take heat Fahad and then those electrons will come out of that metal, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जिसमें कोल्ड मेटल के ऊपर रेडिएशन आती है, फोटॉन उसको एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ये क्या है? थर्मियोनिक इमिशन। आप मेटल को हीट अप करेंगे, हीट अप करने के बाद इंफ्रारेड रेज, वही हीट वाली इंफ्रारेड रेज अंदर जाएंगी और वो बहुत इंटेंस होएंगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगी, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा और बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज
थर्मियोनिक इमेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, राइट। और ये हर जगह जितने भी CRO वगैरह के अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, सो देन they need to accelerate the electron. Electrons should be moving at very high speed. क्यों? Because डी ब्रोगले ने कहा था यार अगर स्पीड बहुत फास्ट होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो दे हैव टू मूव इलेक्ट्रॉन्स एट वेरी हाई स्पीड। अब वेरी हाई स्पीड के लिए ये वाला जो बैटरी है ना, ये फिर दिस विल कम इनटू प्ले। तो वी से दिस इज एक्सेलरेटिंग potential difference. So this is used to accelerate the electrons in order to increase their speed to a desired value. जब तक fringes नहीं बनी, they keep increasing speed, increasing speed, increasing speed. कैसे? Keep increasing potential difference. Potential difference बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, speed बढ़ती रही और एक टाइम पे आके फ्रिंजेस बन गई। ये नहीं हुआ कि उसने फर्स्ट टाइम किया तो उसने कहा ये लो भाई हो गया, इतना ईजी है। ज़ाहिर है उसको स्पीड बढ़ानी पड़ी थी इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंक्रीजेस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजेस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे स्पीड बढ़ाता है। ओके, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ओवर चार्ज, एंड देन वी नो वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन by accelerating potential is actually equal to change in kinetic energy. क्योंकि ये जो वर्क होगा, जो फील्ड कर रही है, दिस नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट एंड दिस होल सिलेंडर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, दिस होल पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस होल नेगेटिवली चार्ज. सो दिस फील्ड इज pushing the electron and doing work to accelerate them. So we say that work done is change in energy, and this is potential difference, and this is charge. Q is the charge of electron E. So from here we can say okay, this is half mv square and this is VE. ठीक है, ये this derivation is also there. अब हमने क्या करना है? What we have to do, we have to find an expression for V. तो V को हम यहीं पे सब्जेक्ट बना लेंगे, शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, सो इट विल बी 2 VE डिवाइडेड बाय M, राइट. अब आप क्या करेंगे? यू विल टेक रूट ऑफ इट, आप इसका रूट ले लोगे और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी. दिस V इज एक्चुअली द स्पीड, क्योंकि 2 V है ना, तो इट माइट कंफ्यूज यू. स्मॉलर V इज स्पीड and capital V is potential difference. So it is 2VE over M. So from this relation they can find the speed of the electron. तो क्या उन्हें चाहिए? What they need, one specific thing they need is this V. और ये V क्या है? देखो E तो पता है ना, E तो पता है 1.6 10 to the -19, mass of electron भी पता है 9.11 into 10 to the -31. All they need to do is V, find V. V is what? Potential difference. तो वो V यहाँ से देख लेंगे कि भाई हमने कितना वोल्टेज रखा है, राइट. तो जितना वोल्टेज वहाँ से रखा होगा वो यहाँ लगा दोगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाएगी. क्यों भाई शानजे, मुश्किल है ये? नहीं. ओके, सो दिस V, कैपिटल V is what? Capital V is accelerating potential difference. Right? So that justified the whole scenario कि ये जो potential difference है, this is accelerating potential difference which is used to accelerate the electron. ठीक है, और उससे उसकी स्पीड बढ़ेगी. और उसके बाद हमने ये प्रूव कर लिया कि स्पीड हम कैसे निकालेंगे, 2VE ओवर M से निकालेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अब आगे चलते हैं इससे. अब ये जो मेटल सिलेंडर है, this will be doing one thing, this will be making a beam of electron as well. Beam of electrons. मेटल सिलेंडर का एक काम होगा बीम बनाना. क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर सिलेंडर है और उसकी पूरी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से गुजरेगा तो लेट्स से कि ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है, और हम सब इलेक्ट्रॉन हैं. जब हम इसके अंदर से गुजर रहे होंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें जो सिलेंडर की वॉल्स हैं वो हमें अपनी तरफ खींचेंगी. लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब हम बीच में से जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर वॉल के साथ हम इक्वली सेपरेटेड होंगे, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली. तो हम किसी वॉल की तरफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे भाई हमें ऊपर भी वॉल खींच रही है, नीचे भी खींच रही है, इधर भी खींच रही है, इधर भी खींच रही है, तो हम कहाँ जाएं? तो ऑल फोर्सेस विल बी न्यूट्रलाइज, रिजल्टेंट फोर्स 0, और हम सारे इकट्ठे होकर एक लाइन में चलना शुरू हो जाएंगे.
तो ये सब इलेक्ट्रॉन जो पहले स्कैटर होके आ रहे थे सिलेंडर के अंदर से गुजर के एक बीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइन बीम, राइट। तो ये इसका पूरा काम है। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना यहाँ पे, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना जिसमें हाई वोल्टेज बैटरी होती है, और नंबर 3 उसको एक फाइन बीम में कन्वर्ट करना, क्योंकि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो वो कोई यूज़लेस होंगे, हमें एक फ़ाइन बीम चाहिए उसकी। और वो बीम भी कोई ये नहीं कि बिल्कुल नैरो बीम हो, वो एक थोड़ी वाइडर बीम भी हो सकती है, बट वी नीड अ बीम, राइट। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? नेक्स्ट ओवर हियर वी आर गोइंग टू प्लेस अ कार्बन फिल्म। दिस इज़ थिन कार्बन फिल्म। थिन कार्बन फिल्म, कार्बन मतलब कार्बन की एक फिल्म लेके, एक लेयर लेके, थिन लेयर, एज थिन एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इससे पहले रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल भी यूज़ कर चुका था। आंसर टू योर क्वेश्चन कि वो तो गोल्ड फॉइल भी यूज़ किया था उसने 1909 में, जिससे उसने एटम का स्ट्रक्चर बताया था, थिन गोल्ड फॉइल, राइट। तो इसी ये तो उसके बाद हुआ था, 15-16 ईयर्स बाद ये चीज़ हुई थी। तो इसने यूज़ किया कार्बन फॉइल, कार्बन का पेपर यूज़ किया इसने। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग इज अ बिग स्क्रीन। नेक्स्ट थिंग इज अ बिग स्क्रीन। दिस इज स्क्रीन। अच्छा, और ये स्क्रीन जो है, दिस स्क्रीन इज कोटेड विद फ्लोरेसेंट पाउडर, कोटेड विद फ्लोरेसेंट पाउडर। I have told you earlier कि why fluorescent powder in order to make it visible. अच्छा, अब when electrons are going to hit this screen, what is going to happen over there? Okay, what is going to happen over there? कि वहाँ पे ये होगा कि इस तरह के ना, like this, ऐसे बनेंगे, circular fringe patterns बनेंगे, like this. एक यूनिक पैटर्न बनेगा जो बिल्कुल सर्कुलर होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट। और जो एक्चुअल पैटर्न बनता है वो भी ग्रीन ही बनता है, क्योंकि फ्लोरेसेंट पाउडर पे जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो ग्रीन लाइट वो इमिट करता है, राइट। तो इसमें क्या होएगा कि सर्कुलर पैटर्न्स बनेंगे, ब्राइट और डार्क, जस्ट लाइक दैट, कि यहाँ पे ये ब्राइट था, जो कलर यूज़ करोगे, लाइक आई मीन इफ़ यू यूज़ रेड कलर, इफ़ यू यूज़ ग्रीन कलर, तो यहाँ भी ग्रीन ही लाइट आएगी, ब्राइट फ्रिंज ग्रीन होएगी। अगर आप रेड यूज़ करोगे तो ब्राइट रेड होएगा। ब्राइट का मतलब यही होता है ना कि वहाँ पे लाइट आके पड़ेगी, जिस कलर की आप लाइट यूज़ करोगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन में ये है कि यहाँ पे आके फ्लोरेसेंट पाउडर था तो ये ग्रीन सर्कल्स बने। अब ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं, फ्रिंजेस, ये दीज आर कॉल्ड सर्कुलर फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस, राइट। ये जो फ्रिंजेस हैं, दीज आर लीनियर फ्रिंजेस, लीनियर रेक्टेंगल शेप में बन रही हैं। These are circular fringes, circular bright and dark fringes are formed, right? अच्छा, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ outcome of this experiment. So outcome of the experiment was circular fringe pattern was observed on screen. It consists of bright and dark fringes, of course circular. So when this has happened, this indicates कि भाई ये तो डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस हैं, सो दैट प्रूव्स के मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक वेव्स। इसमें अब फैक्टर्स, एक और फैक्टर्स को देखते हैं। फैक्टर्स में दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड speed is directly proportional to potential difference. From here, speed is directly proportional to potential difference or square root of potential difference, same thing. This thing is very important. देखो, lambda inversely proportional to speed, ये तो डी ब्रॉगले ने कहा था, यहाँ से जो हमने प्रूव किया है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर हमें जो है वो
शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। शॉर्टर क्यों चाहिए? क्योंकि जो कार्बन फिल्म है, कार्बन फिल्म, इसके अंदर जो सेपरेशन एटम्स के बीच में वो बहुत कम है, राइट? तो गुड डायफ्रैक्शन कब होती है? गुड डायफ्रैक्शन जब कहाँ मैंने लिखा है ये, जब गैप सेपरेशन और वेवलेंथ इक्वल हो। तो वी नो कि भाई यहाँ पे तो एटम्स के बीच में बड़ी माइनर स्पेस है, द स्पेस इज वेरी वेरी माइनर, ऐसे ही है ना? इट मीन्स जब स्पेस बहुत माइनर है, दिस स्पेस इज वेरी माइनर, तो हमें वेवलेंथ क्या रखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की? शॉर्टर रखनी पड़ेगी, तब विजिबल डायफ्रैक्शन होएगी ना। तो एक्चुअली वी नीड शॉर्टर वेवलेंथ। अब शॉर्टर वेवलेंथ कैसे रख सकते हैं? भाई उसकी स्पीड बहुत तेज रखो आप, डी ब्रॉगले वेवलेंथ के एक्सप्रेशन से। शॉर्टर वेवलेंथ मीन वेरी हाई स्पीड। वेरी हाई स्पीड पॉसिबल कब हो सकती है? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखें। ये वाला एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है, दिस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल शुड बी वेरी हाई, राइट? तो ये इसका कनेक्शन बनता है कि अगर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वेव इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, और जो फ्रिंजेस हैं, फ्रिंजेस वो और क्या करेंगी, श्रिंक कर जाएंगी, उनका रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस, ये वो काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर ये बात पूछता है, ये वाली यूजुअली क्वेश्चन जहाँ पे एंड हो रहा होता है ना, लास्ट पार्ट, उसमें ये पूछता है कि हमने स्पीड बढ़ा दी भाई या स्पीड कम कर दी, तो बताओ ये जो फ्रिंज पैटर्न बना हुआ है इस पर फ़र्क क्या पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक स्पीड पे ये पैटर्न बन रहा है ऐसे, फिर मैं कहता हूँ मैंने स्पीड स्लो कर दी है, अब बताओ इस पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो कर दी है, तो इस पैटर्न पे फ़र्क क्या पड़ेगा? सर्कल्स क्या ऐसे ही रहेंगे, बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, क्या होगा? ये इधर आपको मैंने यही बात बताई है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्पीड कम कर दी है, पोटेंशियल डिफरेंस कम किया होगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कम किया होगा ना, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो गई है। स्पीड कम हो गई है तो वेवलेंथ क्या हो गई? ज़्यादा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो गई तो सिंपल यार ओ लेवल्स वाला यूज़ करो ना डायफ्रैक्शन के लिए। अगर वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, गैप विड्थ कम हो, तो क्या होता है? डायफ्रैक्शन, गुड डायफ्रैक्शन फिर नहीं रहती। गुड डायफ्रैक्शन तब होती है जब गैप विड्थ एंड वेवलेंथ बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल टुगेदर, राइट? तो उससे क्या होगा कि डायफ्रैक्शन जो है, गुड डायफ्रैक्शन नहीं होएगी तो उसका रिजल्ट फ्रिंजेस पे क्या बनेगा? फ्रिंजेस बड़ी हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, राइट? क्योंकि जब वो स्प्रेड होंगी तो हमें फील नहीं होगा कि भाई यहाँ फ्रिंजेस हैं या नहीं। जितना वो नैरो डाउन होंगी उतना हमें फील होएगा कि देखो ये सर्कल्स हैं बहुत सारे, तो दैट विल बी द प्रोमिनेंट इफेक्ट। जस्ट लाइक अगर स्लो स्पीड है तो वेव इफेक्ट इज नॉट प्रोमिनेंट, बट अगर फास्ट स्पीड है तो वेव इफेक्ट इज प्रोमिनेंट, तो हम कहेंगे यार ये वेव है बिकॉज दिस इज वेरी फास्ट। तो अगर यहाँ पे भी हम उनकी स्पीड स्लो कर देंगे तो ये फ्रिंजेस बहुत बड़ी हो जाएंगी। जब फ्रिंजेस बहुत बड़ी हो जाएंगी तो शायद हमें नज़र ही ना आए, स्क्रीन के ऊपर बने ही ना, तो हम कहेंगे यार कहाँ फ्रिंजेस बन रही हैं, नहीं बन रही यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली अगर हम बहुत बड़ी स्क्रीन लगाते तो उसके ऊपर बड़े बड़े सर्कल्स फिर बन रहे होते हैं उस पर। दैट मीन्स लोअर वेव इफेक्ट। बट इफ़ वी इंक्रीज द स्पीड, व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड, तो गुड डायफ्रैक्शन विल हैपन एंड दीज सर्कल्स विल श्रिंक, ज़्यादा फ्रिंजेस हो जाएंगी। वो उसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में था ना, इफ़ यू रिकॉल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्स इज लैम्डा डी बाय ए। एक्स क्या था? फ्रिंज स्पेसिंग, टू ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस था वो एक्स था, राइट? तो वी से कि भाई अगर हमने एक्स डिक्रीज करना है तो एक्स डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि फ्रिंजेस छोटी करनी है। इट मीन्स मोर फ्रिंजेस विल बी देयर ऑन द स्क्रीन। ऐसे ही है ना, व्हेन यू डिक्रीज एक्स मोर फ्रिंजेस विल बी देयर। अभी 1 2 3 4 5 फ्रिंजेस हैं, बट इफ यू डिक्रीज एक्स बाय हाफ तो 10 ब्राइट फ्रिंजेस विल बी देयर, राइट? तो x कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? इधर इस जगह पे x कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? या लैम्डा डिक्रीज करो, या d डिक्रीज करो, या a इंक्रीज करो। ये तो आई मीन as के फैक्टर्स है ना। इसी तरह यहाँ पे भी फैक्टर है। द ओनली वन थिंग विच इज़ द लास्ट थिंग कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द फ्रिंजेस और डिक्रीज द रेडियस ऑफ द फ्रिंजेस, हाउ यू कैन डू दैट? व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग? डिक्रीजिंग द रेडियस इज़ द बेस्ट थिंग। Why? Because then more fringes will be visible to you, right? जिस तरह more fringes will be visible here अगर आप x को decrease करें, right? So this was all about matter waves and de Broglie wavelength. ठीक है? Okay, anything that you want to discuss? जो ये लिखा हुआ है बस ये ही मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगले वेवलेंथ
मे बी हमने डेफिनेशन नहीं लिखी, यू कैन राइट डेफिनेशन योरसेल्फ. द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मैटर इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ. द वेवलेंथ associated with moving matter is known as de Broglie wavelength. ठीक है, और ये इसका एक्सप्रेशन है, ईज एम सी स्क्वायर ईज एच सी ओवर लेमडा. कंपेयर करके ये स्क्वायर कट गया, लेमडा को आपने सब्जेक्ट पी, चलो एम सी मोमेंटम हो गया, और फिर ये लेमडा जो है इसको सब्जेक्ट बना लिया, इसको इसके साथ स्वाइप कर लिया, और एच लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी. एच इज़ प्लैंक कांस्टेंट, पी इज़ मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल विच इज़ एम इंटू सी. एम इज़ मास ऑफ दैट पार्टिकल, सी इज़ स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल. तो ऊपर h और m कांस्टेंट है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. सो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल. ये इसका मेन फैक्टर है. और आगे बस उसकी जस्टिफिकेशन है कि भाई इसको प्रूफ कैसे किया था, उसने प्रूफ करके दिखाओ. तो उसने कहा वेव नेचर प्रूफ करनी है, डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कर दो. उसमें हमने डिटेल से पढ़ लिया. उसने इलेक्ट्रॉन गन यूज़ की. इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर है उसने इलेक्ट्रॉन पहले प्रोड्यूस भी करने थे. उसने इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है. उसके बाद उसने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस रखा जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की स्पीड चाहिए थी. वाई? बिकॉज लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. तो कंट्रोल स्पीड उसने करनी थी. तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उसने ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ये लगाया, हाई वोल्टेज बैटरी, राइट. और उसके बाद आगे फिर कार्बन फिल्म यूज़ की. आगे फ्रिंज पैटर्न्स बने. फ्रिंज पैटर्न कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस. सर्कुलर, वाई सर्कुलर? बिकॉज जो उसने कार्बन फिल्म यूज़ की थी, एटम सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, तो उनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो भी सर्कुलर होती हैं, वो लीनियर नहीं होती. यहाँ देखो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस भी होती हैं. इधर रेक्टेंगुलर फ्रिंजेस क्यों बन रही हैं? क्योंकि यहाँ जो उसने स्लिट्स यूज़ की थी उनकी शेप ही रेक्टेंगुलर है, तो जैसी शेप होएगी वैसी फ्रिंज आगे बनेगी, राइट. तो इस तरह यहाँ फ्रिंजेस बन गई. फिर ये एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, V इज़ W ओवर Q और W इज़ V Q. W वर्क डन बाय फील्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. और यहाँ से हम स्पीड का एक्सप्रेशन निकालते हैं विच इज़ 2 टाइम पोटेंशियल डिफरेंस इनटू E ओवर मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, राइट. ओके, और फिर आउटकम क्या थी कि फ्रिंजेस बन गए. जब फ्रिंजेस बन गए तो उसने कहा देखो भाई इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है. दैट्स वाई मैटर वेव्स वाज प्रूवन कि वाकई मैटर वेव्स होती हैं. लेकिन ये सिर्फ तब होती हैं जब स्पीड जो है वो बहुत फास्ट हो. अगर स्पीड स्लो हो, जिस तरह हम लोग जिस डायमेंशन में रहते हैं हमारी स्पीड्स यहाँ कम होती हैं, ज़्यादा नहीं होती. तो दैट्स वाई हमें मूविंग मैटर के साथ वेव्स एसोसिएटेड नज़र नहीं आती. और वैसे हो भी नहीं सकता ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको डायफ्रैक्ट कराने के लिए उतनी बड़ी चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो पॉसिबल नहीं होंगी, राइट. तो दैट्स वाई उसने इलेक्ट्रॉन यूज़ किया था. लेकिन हमारी वेव्स तो होंगी तो वापस में इंटरेक्ट करती हैं. हाँ, हमारी वेव्स तो होंगी ना, उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो इंटरेक्ट करती हैं आपस में. इस तरह वेव्स का मतलब ये नहीं है कि हम वेव्स इमिट कर रहे हैं, हम खुद मूव कर रहे हैं तो वी हैव वेव बिहेवियर. हमारे बॉडी में से वेव्स नहीं निकल रही. हाँ, ओवर हमारे बॉडी में से वेव्स निकलती हैं, जिस तरह अभी साउंड वेव निकल रही है, या जिस तरह बॉडी में से इंफ्रारेड रेज निकल रही होती हैं, वो होती हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट आपस में करती हैं. दो लोग एक साथ भाग रहे होते हैं तो उनकी वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं. हाँ, अगर वो दोनों की टक्कर हो जाए तो इंटरेक्ट करेंगी. यस, जाहिर है, ऑफ कोर्स. हाँ, ठीक है. मतलब वैसे कांटेक्ट के अलावा कुछ होता है, कुछ भी होता है. फिजिकल कांटेक्ट के अलावा हाँ, स्पिरिचुअल कांटेक्ट हो सकता है. स्पिरिचुअल कांटेक्ट, पता है ना स्पिरिचुअल कांटेक्ट. अभी मेरा आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल कांटेक्ट ही है ना. समझा रहा हूँ आपको एक बात कि यार ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है. सो दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल कांटेक्ट. वैसे नहीं, इस तरह नहीं होता, लेकिन दिस इज़ अ गुड पॉइंट. ये इस पे काम किया जा सकता है या देखा जा सकता है कि इस पे कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट. लेकिन अभी तक मेरी नज़र से ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी कि ह्यूमंस या बॉडीज़ मूव कर रहे हों और वेव्स हों और वो लिंक करें. आई हैव नेवर सीन दैट. ठीक है, मे भी हो रहा हो. दुनिया बहुत बड़ी है ना, साइंस में काम भी बहुत सारा हो रहा है. ओके, तो लेट्स मूव. हाँ, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वो एक्सेलरेट करवा रहा है. हाँ जी, यस यस.
So spectrum is group of radiation. There are two spectrums. One is electromagnetic spectrum from sun, 7 radiation, and one is the white light spectrum, consists of 7 colors. So the common thing in them is that their speed is same. अच्छा, अब we also generate these waves on earth, right? जैसे we generate radio waves, we generate microwaves, we generate infrared, we generate visible light, ultraviolet, X-rays, gamma rays. हम ये सब प्रोड्यूस करते हैं. क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए. लाइट से क्या बनती है? विजिबिलिटी. इंफ्रारेड रेज से क्या होता है? कुकिंग होती है, या इंफ्रारेड हीट सेंसिंग कैमरास के अंदर यूज़ होती हैं, या उसके अंदर ऑप्टिक फाइबर के अंदर डाटा लेके जा रही होती हैं. माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन या माइक्रोवेव ओवन, रेडियो वेव्स मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, वाईफाई के अंदर रेडियो वेव्स होती हैं सारी. अल्ट्रावायलेट मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए डेंटिस्ट यूज़ करते हैं. सैलून्स में इक्विपमेंट की क्लीनिंग के लिए अल्ट्रावायलेट क्लीनर वो यूज़ करते हैं. एक्स रेज बोन इमेजिंग के लिए होती है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होती है. गैमा रेज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होती है, स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के लिए होता है. क्वेश्चन इज़ ये सब बनती कैसे हैं? हम कैसे बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं. नहीं, हम इनको कैसे बनाते हैं ये टॉपिक हमने पढ़ना है कि हम इन रेडिएशन को बनाते कैसे हैं. और वो बताया था बोहर्स ने अपने इलेक्ट्रॉन मॉडल में. असल में ये होता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं. आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है के, शेल, एल, एम, एन, इस तरह. फिजिक्स में हम के, एल, एम नहीं पढ़ते. हम कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट जो न्यूक्लियस के करीब होती है. के शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, उसको हम कहते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट. उसके बाद एल, एम, एन ऊपर वैलेंस को हम कहते हैं इन्फानाइट एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट. अब इन सब एनर्जी स्टेट्स के अंदर, एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना. के शेल में भी होते हैं, एल में भी होते हैं, एम में भी होते हैं, ऐसे ही है. अब ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहता है, केवल अपने शेल में हमेशा रहता है, कभी वो ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता. इट जस्ट कीप मूविंग इन इट्स शेल. ठीक है. लेकिन इफ समहाउ हम बाहर से कोई उसको एनर्जी दें, बाहर से फोटॉन की फॉर्म में फोटॉन आए, के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हिट करे, उसको उठा के वो ऊपर हायर एनर्जी लेवल में ले जाए, राइट. इस तरह भी हो सकता है. और होता ये सब वेव्स ऐसे ही प्रोड्यूस होती हैं. ये लाइट एलईडी ऐसे ही प्रोड्यूस कर रहा है. इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल को छोड़ के हायर शेल में चला जाता है. कैसे? देखो, एक सिंपल एनर्जी कन्वर्जन देखते हैं. आपने मुझे बताना है इसमें एनर्जी कन्वर्जन क्या होएगी. पूरी एनर्जी कन्वर्जन बतानी है, इनपुट से आउटपुट तक. ठीक है. देखो, एनर्जी कन्वर्जन क्या है? इसको आपने इलेक्ट्रॉन समझना है, और मैं इसको बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ, फोटॉन दे रहा हूँ. देखो अब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है. मार्कर यहाँ पे नॉर्मली इसी हाइट पे रहता है, क्योंकि अगर मैंने पकड़ा हुआ है तो इसी हाइट पे रहेगा ये. ठीक है. अच्छा, अब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, और तो अभी एनर्जी कन्वर्जन्स क्या हुई हैं? एनर्जी कन्वर्जन्स क्या हुई हैं? पहले कौन सी एनर्जी इसको मिली है? मैंने केमिकल यूज़ की है, वो इसको मिली है. फिर काइनेटिक, फिर जीपी, फिर और नीचे हिट करके आपको क्या मिला है? थर्मल एंड साउंड. अब देखो, हमने एनर्जी कन्वर्जन की ना, मैंने अपनी केमिकल यूज़ करके आपको क्या दी है? आपको आउटपुट क्या मिली? आउटपुट थर्मल और साउंड. यही काम होता है सेम इसके अंदर, एटम्स के अंदर, कि जब इलेक्ट्रॉन को हम फोटॉन देते हैं वो हायर एनर्जी शेल में जाता है. जब वो वापस आता है हायर में, वो रुक नहीं सकता. क्या ये मार्कर ऊपर रुका था? नहीं ना. इलेक्ट्रॉन भी जब वापस नीचे आता है तो वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में रेडिएट करता है. वो एनर्जीज फिर ये होती हैं, दिस कैन बी एनी वन ऑफ देम. उसको हम कंट्रोल करते हैं. हमें अगर ये चाहिए तो हम बहुत हायर शेल में लेके जाना पड़ेगा. अगर हमें थोड़ी लो एनर्जी चाहिए तो हम ये वाली एनर्जीज चाहिए, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड चाहिए, तो हम लोअर से थोड़े से हायर में उसको लेके जाएंगे. तो एक्चुअली समिंग इट अप, हाउ वी कैन प्रोड्यूस दीज वेव्स? वी कैन प्रोड्यूस दीज वेव्स बाय शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और उसको हम कंट्रोल करते हैं कि किस लेवल में जाए. ठीक है. क्योंकि हमें जो एनर्जी चाहिए होगी उसके हिसाब से हम उस एनर्जी लेवल में भेजेंगे. ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हाईएस्ट एनर्जी चाहिए, हाईएस्ट लेवल में भेजेंगे. ठीक है. थोड़ी एनर्जी चाहिए इधर, तो लोअर एनर्जी लेवल में भेजेंगे. जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा वो एनर्जी बाहर एटम से निकालेगा, वो एनर्जी होगी जो हम यूज़ कर रहे हैं. तो अभी राइट नाउ एलईडीज़ क्या कर रहे हैं? एलईडीज़ आर, लैम्प्स आर डूइंग द सेम थिंग. इसको हम करंट दे रहे हैं, करंट से इस एलईडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर लेवल में जा रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं और वो विजिबल लाइट फोटॉन निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट मिल रही है. ठीक
ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह फिर कल इसको हम वाइंड अप कर लेंगे।